संग जुड़ गए हैं। मैं मंच राकेश और ऋषभ के हवाले करता हूं इस अगले बेहद खास सेशन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका और हमारे गेस्ट किरण रिजिजू जी। सर, इट्स बीन अ प्रिविलेज टू इंटरव्यू इन द पास्ट एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आप हमारे साथ आए, हमारे इंडिया न्यूज मंच पे आज जुड़े। सर, चर्चा हम सुबह 9 बजे से कर रहे हैं, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगी। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। कल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर हैं, उन्होंने अपने सारे सांसद बुलाए और उन्होंने आप पे टिप्पणी करी पर्सनली कि यू आर डीलेजिटिमाइजिंग द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट यू, सर। हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू दिस? Thank you very much for inviting me to your summit. First of all, I would like to make a very plain statement. Nobody in India will undermine judiciary, and no government should undermine the independence of judiciary. That includes the dignity of Indian judiciary, its independence. We are committed to an independent judiciary. Having said that, what Srimati Sonia Gandhi ji had made remark yesterday, I was not upset, but I was amazed because the way she attacked government of India, accusing our government of trying to take over judiciary. I have come with a small note. I knew that you will ask this question. So, the term committed judiciary came into existence during Indira Gandhi's time. I will read out some of the points which I have carried out for the benefits of your viewers. Sonia Gandhi talking about our government trying to undermine Indian judiciary is like, devil quoting structures. If you go back to some of the cases, the verdict by Allahabad High Court, which set aside Srimati Indira Gandhi's election as MP, and few other judgments in Madhav Scindia versus Union of India and R.C. Cooper versus Union of India, where her political decisions were questioned by the courts to protect the constitution. And it did not go down well with Srimati Indira Gandhi. 3 senior most judges, Justice Hegde, Justice Shelat, and Justice Grover of Supreme Court, were superseded, and their junior Justice A.N. Rai was appointed Chief Justice of India. During our 8 years of government's tenure under Modi ji, not a single instances can be shown where we have undermined Indian judiciary. Again, Justice M.H. Beg superseded the senior and legendary senior most judge, Justice H.R. Khanna, after he gave a powerful dissent in the case of ADM Jabalpur versus Shivakant Shukla related to the proclamation of emergency by Srimati Indira Gandhi. There are numerous cases I can cite. For example, the judges of the high courts who did not do the government's line were transferred. Justice S.H. Seth, one of the most fearless judges, who was transferred, even the transfer was challenged and it got succeeded. Likewise, during the black days of emergency and after putting all opposition leaders in jail, Mrs. Gandhi passed 42nd constitutional amendment attempting to curtail judicial powers. With this amendment, Constitution of India started being known as Constitution of Indira. There are numerous instances which I don't want to go further deep. This kind of political efforts to trumpet the Indian judiciary or any dissent voice
is the culture of Congress party. That is why I challenge Srimati Sonia Gandhi and the Congress leaders to prove one instance where we disobeyed the court order or where we have tried to undermine the Indian judiciary. So this kind of accusation is something Congress should think about, that do they have moral authority or moral right to even question this thing or even to make an allegation against me or our government? From the day one, I have made my position very clear. We are guided by the Constitution of India, but the sovereignty of India lies with the people of India. We get elected, and if people don't want us, we will sit in opposition. Because we are part of the robust democracy, and Indian democracy is the biggest democracy in the world. So in India, anybody who questions the independence of judiciary, it is only the Congress party who has always questioned the independence of judiciary, not BJP or not any other party for that matter. So I was very amazed by yesterday's allegation made by Srimati Sonia Gandhi against our government. Secondly, I will not drag very long. From the day one, I have given utmost respect to the judges. It is during my tenure as law minister, we extended all the benefits to the retired judges of the Supreme Court and Chief Justice of the High Courts. Even if the moment I retire as a minister or the moment I demit my office, I will not be entitled to anything except my small amount of Member of Parliament, that pension. But now the retired Supreme Court judges are given lifetime benefits, lifetime drivers, lifetime their secretarial assistants, lifetime other support system. They are access to the ceremonial lounges in the airport. These are done because we want the judges are fearlessly, independently doing their duty while they are serving in the benches, and after retirement they should be given a very dignified status. That is why we did it. We respect judiciary, and the one who respects the judiciary are being accused of being undermining Indian judiciary. And for making my point very straight, I have great relationship with the judiciary judges, and I have very cordial relationship with the Chief Justice of India and all the Chief Justices of the High Court. Just by twisting words here and there will not make our relationship bad. My answer in Rajya Sabha was being, misconstrued as a challenge to the Indian judiciary. I never said that Supreme Court should not hear the bail petition. I only said Supreme Court should give priority to the constitutional matters. Petty bail matters can be handled by lower courts, but when it comes to liberty, when it comes to greater, larger issues, definitely Supreme Court can hear it. So all my words are misinterpreted, and they are making it look as if government is fighting with the judiciary. That is why I have taken a little longer for my opening remarks. Pretty strong and emphatic you are on this, but in the comment passing, Rakesh has not just been about this. दूसरे चीजों पे भी काफी comment passing हुई है पार्लियामेंट में. किरण जी, जो तवांग में LAC पर जो कुछ हुआ, उसको लेकर विपक्ष जो है काफी आक्रोशित है. जिस तरह से संसद की कार्यवाही में आपको देखने को मिला, कल 12 विपक्षी दलों ने जिस तरह से गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया, सीधे तौर पर उनका आरोप था कि मोदी सरकार जो है इस मसले पर चर्चा नहीं कराना चाहती. आखिरकार सरकार को क्या दिक्कत है विपक्ष? सबसे पहले तो गांधी जी का स्टेच्यू के सामने में बैठ करके इन लोगों को लड़ाई और हिंसा का बातें नहीं करना चाहिए था. दूसरी बात, जब ये सीमा के बारे में बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, मुझे अफसोस होता है कि मैं खुद जिस जगह से सांसद चुन के आए, जब मैं शुरू में एक जवान सांसद के हिसाब से मैं आए थे, तब तक मैं पैदल चलते थे. मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मेरे गांव, मेरे सीमा क्षेत्र इलाका में मैं पैदल चलता था. हमारे आर्मी के जवान पैदल चलते थे.
हमारे वहां कुछ सुविधा नहीं था, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना टेलीफोन, कुछ भी नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है, सारा हमारा बॉर्डर एरिया में रास्ता भी बन गया, मोबाइल टेलीकॉम कनेक्टिविटी लग गया है। अब मैं पैदल नहीं चलता हूं, गाड़ी से चलता हूं अपने लोगों से मिलने के लिए। और 2013 में उस समय के रक्षा मंत्री एंटोनी साहब ने खुद लोकसभा में बयान दिया कि ये कांग्रेस पार्टी का पॉलिसी रहा है कि चीन से बचाए रखने के लिए हमारे बॉर्डर एरिया में कुछ नहीं बनाना चाहिए। और कांग्रेस का ऐसा एक नीति रहा है कि कुछ नहीं बनाने से, बॉर्डर एरिया नहीं बनाने से हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ऐसा नीति बनाने वाला कांग्रेस पार्टी आज सीमा सुरक्षा का बात करते हैं, चाइना के बारे में बात करते हैं। मुझे अफसोस की बात है, 2005 में जब मैं चाइना का इशू रेस कर रहा था लोकसभा में, प्रणब मुखर्जी उस समय सदन नेता थे लोकसभा में, उसने मुझे बुलाया और बोला कि किरण, तुम एक जवान एमपी हो, तुम्हारा जो सोच विचार को मैं सहमत करता हूं, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। ये हमारा पड़ोसी देश का मामला है, ये सीमा का मामला है, इसको इंटरनली बात किया जाना चाहिए, इसको चर्चा का विषय मत बनाइए। और मैंने आडवाणी जी से बातचीत करके आडवाणी जी ने कहा कि सदन नेता ने रिक्वेस्ट किया है तो हम लोग को मानना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कमिटमेंट ले लो कि अरुणाचल प्रदेश और सीमावर्ती इलाकों में काम अच्छा होना चाहिए, सही तरीके से वहां मदद मिलना चाहिए लोगों को। ये आश्वासन दे दे, फिर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमने माना है, हम ऐसे नहीं किया कि सदन चलने नहीं दिया, हाउस बंद किया, ऐसे नहीं। मैं कांग्रेस जैसे इनडिसिप्लिन बिहेव नहीं किया उस समय। और आज कांग्रेस नेताओं का जो व्यवहार है पार्लियामेंट में, ये तो बच्चे भी ऐसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे कांग्रेस के लोग बिहेव कर रहे हैं। बहुत इनडिसिप्लिन लोग हैं ये लोग। लेकिन किरण जी, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है कि चीन से प्रधानमंत्री डरते हैं। ये राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस के और नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि 58 इंच 56 इंच कहाँ गया, ये चीन के सामने सब धराशायी हो गया। ये आखिरकार इस तरह की बातें करना क्या आपको लगता है? इनका आदत लगता है गया नहीं है। 1962 में जब पंडित नेहरू जी दिल्ली से कोलंबो जा रहे थे, तो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में पत्रकारों ने पूछा कि वहां सरहदों पे कुछ गतिविधि हो रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो डायलॉग किया उस समय कि सारा चाइनीज को उठा के फेंक दो, वही आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि 15 मिनट में सारा चाइनीज को उठा के फेंक दें। और 1962 में क्या हुआ और 62 से लेकर के 2014 तक हमारा बॉर्डर का क्या हालत रहा है, इन लोगों को समझ ही नहीं है। ये लोग वेकेशन में जाते हैं, मस्ती करते हैं, टाइम पास के लिए राजनीति करते हैं। इन लोगों को देश का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनको देश का आम जनता का जो मुद्दा है कोई लेना देना नहीं। इनके लिए पॉलिटिक्स एक फैशन है। हम पॉलिटिक्स में इसलिए है कि समर्पित भाव के साथ हम देश सेवा करते हैं। इसलिए उनके और हमारे बीच में कोई तुलना नहीं हो सकता है। मोदी जी के बारे में तो उनको कुछ भी कहने का हक नहीं है। और मोदी जी की वजह से आज हर भारतीय किसी भी दुनिया का किसी भी देश में जाएंगे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, सर ऊंचा हो जाता है। पूरा इंडिया को आज पूछते हैं। Okay, Kiranji, let me bring it back since you mentioned about development. What is the real situation? Because we now know this Trans-Arunachal Highway is being built exactly following the line of the border. PM Modi was there. He has launched a new airport. Flights have started to your national capital in Itanagar. How is the real situation on the ground changing, sir? See, when I was in opposition MP, as an opposition MP, I used to make lots of efforts to draw the attention of the central government to create basic infrastructure. Today I am proud to say that just a month back, Modi ji himself was there at Itanagar to inaugurate the first greenfield airport in Arunachal Pradesh. Now we have 8 advanced landing grounds. The railway connectivity is done. Now further railway deep inside the state is being considered and it is under survey and DPRs are being prepared. Lots of things are being done which I would not like to count, but to tell you right now more than 1 lakh crore of money
is being spent for infrastructure in Northeast. And in Arunachal alone, more than 42,000 crore of amount is being spent only for road construction. So this kind of change is visible under a committed leadership who carries a very long-term vision for the nation, for the welfare of the people and to secure our every inch of the territory. So that is why when Modi ji and our government is doing something to reach out to the people by showing results, by doing concrete works on the ground, and allegations are made against same government by those people who have never considered Northeast as even a priority area. So you can very well understand that for them, as I said, politics for them is just a fashion, but for us, politics is commitment to serve the nation. Okay, what is then, looking back as we end the year 2022, sir, that you would feel have been the notable achievements? This is, of course, one of them that you feel are notable achievements of your government. There are so many things I really cannot just make a count on one or two, because across spectrum of issues, all the sectors, if you see, we have had a tremendous progress in past 8 years. So it's not a, very regular type of progress. It's a quantum jump. It's a revolutionizing in terms of making progress. I feel proud that I'm part of Modi ji, I'm part of his cabinet, who is seeing a kind of a phenomenal change on the ground in terms of development as well as to connect people emotionally. Because now people in Northeast feel Delhi is close to them. Because every day the central ministers, senior officers are made to visit the difficult areas, spend time with the people, connect with them, and also to solve their issues and problems. Rakesh. किरण जी, जिस तरह से पिछले 8 साल से ज्यादा मोदी सरकार के आते हुए हो गए, क्या आप मानते हैं क्या उपलब्धि रही खास तौर पर 2014 से 2022 तक? देखिए, मैंने जैसे कहा कि उपलब्धि अगर 1-2 होते तो गिनती करके बताने में मुझे आसान होते। जब हमने इतना ज्यादा काम किया है तो अगर हम गिनती करेंगे तो फिर वो सीमित रह जाते हैं कि कुछ क्षेत्रों तक हमारा काम सीमित रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने 2 चीजों को एक साथ मिला करके बोला कि विकास के नाम पर जो धरातल पर काम हुआ है और सोशल सेक्टर में हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, टेलीकॉम का और आपका हेल्थ, एजुकेशन, बाकी जितना सोशल सेक्टर में काम हुए हैं, और उससे भी बढ़कर के इमोशनल कनेक्ट, प्राइम मिनिस्टर 50 बार से ज्यादा 8 साल में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना, और अभी 3 दिन पहले हम लोग साथ में थे शिलोंग में। किरण जी, नॉर्थ ईस्ट पर मैं आऊंगा इसके बाद, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको आप, क्योंकि आपसे नॉर्थ ईस्ट का तो जानना है आपसे आंसर, लेकिन पहले इससे देखिए, देश का अगर हम बात करेंगे, मैं शुरू से 2014 से ही मोदी जी के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते पहले दिन से मैंने देखा है जो बदलाव आया है। पहले दिन जब हम लोग शपथ लेने से पहले जब शॉर्ट लिस्ट किया मंत्रिमंडल, हम लोग 43 लोग थे, पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम लोगों को कहा कि हम लोग जो ग्रुप सरकार में मंत्री बन रहे हैं, हम यहां मंत्री पद में बैठ करके अपना रोक जमाने के लिए नहीं आया है। हम लोग पदभार संभाल के उसको जिम्मेदारी के हिसाब से देश का सेवा करने के लिए आया है। हमारा जिंदगी में कोई छुट्टी नहीं होगी, करप्शन टॉलरेट नहीं किया जाएगा, हर दृष्टि से समर्पित भाव से गांव गांव जाकर के लोगों के बीच में रहना होगा। उस सोच के साथ जब चले हैं, आज आप हर एक सेक्टर में देखिए, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सोशल सेक्टर में हो, हमारे आम लोगों के कॉन्फिडेंस में हो, युवाओं के क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, इतना ज्यादा काम हुआ है कि अगर मेरे पास 1 घंटे होते
तो मैं गिनती कर देते हैं, क्योंकि गिनती करना इतना लंबा हो जाएगा। लेकिन जो चेंजेस मैं कहना चाहता हूं वो मुझे लगता है कि आप लोग भी किरण जी सब देख ही रहे हैं। बार बातचीत होगी इस पे, और अब सालों साल होगी। G20 का जो नेतृत्व भारत में आया है, इसको पूरे तामझाम के साथ करा जा रहा है, और हर स्टेट में प्लान बन रहा है, अरुणाचल में भी बन रहा है। इससे जो मीटिंग्स होंगी, विश्व भर से लोग आएंगे, लीडर्स आएंगे, इंक्लूडिंग लीडर्स आएंगे उस कंट्री से जो शायद अरुणाचल में आना पसंद नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, इससे इकोनॉमिक और टूरिस्ट बेनिफिट क्या आ जाएगा, इसमें जागरूकता, नॉलेज अबाउट अरुणाचल कैसे बढ़ेगी थ्रू दिस G20 कैंपेन? सर नहीं, G20 को हम एक राज्य के साथ क्यों हिसाब करके उसको देखना है। G20 हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, और आप सबको मालूम है G20 यानी कि टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये G20 ही 85% का वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ये G20 में ही दुनिया का 89% का ट्रेड का वॉल्यूम चलता है। इसी G20 में ही दुनिया का आगे भविष्य का रूपरेखा तय करते हैं। जब G20 का प्रेसिडेंसी भारत के पास आया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूं कि इसको राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है, हर पॉलिटिकल पार्टी का ही नहीं, हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है कि G20 का प्रेसिडेंसी इस बार हमारे पास आया है। और इसको भरपूर मौका उठाते हुए जो आपने सवाल रखा है कि 56 लोकेशंस पे जो ये समिट होगा, कई मंत्रालयों के साथ, राज्य सरकारों के साथ ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गया, रूपरेखा तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा भारत को प्रदर्शन करना है। ये नई दिल्ली को सिर्फ हमारा राजधानी के रूप में इसको दिखाने का नहीं है। इट इज ए मैटर ऑफ द होल ऑफ इंडिया टू शोकेस द स्ट्रेंथ, द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई आई फील G20 is an opportunity for every Indian, not for even political parties, not even for 1 or 2 states, not for the government of India or government of the states. It is for every Indian. तो मैं मानता हूं कि एक साल G20 का जो प्रेसिडेंसी मिला है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसको ले और हम शोकेस करें। Giving the diplomatic answer, but to have an international event like G20 in Arunachal, in Srinagar, is going to send a massive statement to the world, and that's good. That's going to be pretty epic. As I said, no, that why should I spin it into a issue of controversy? Let us celebrate our success and let us take this as an opportunity. जिस तरह से किरण जी 2024 अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, क्या आप चुनौती मानते हैं, जिस तरह से विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या आप चुनौती मानते हैं? राजनीति में इतने साल से रहने के बाद हर स्टेप ही हमारे लिए चुनौती है, और हर कदम हम लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं सोच के रखते हैं। उसके बीच में जो भी आएंगे वो तो संभालना पड़ेगा, और भारत के लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो कुछ करना चाहिए हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो उसमें घबराने वाली बात तो है नहीं। और 2024 में इलेक्शन आएगा, सबको पता है, तो वो 2024 को हम सोचेंगे कि 2026 में आ जाए, ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। 24 में समय पे चुनाव होगा, उसी के लिए जो काम करना है हम लोग तो कर ही रहे हैं, पॉलिटिकली भी हम लोग कर रहे हैं, और सरकार की ओर से देश का काम जो करना है वो भी कर रहे हैं। लोग तय करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जितना तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व का आज के दिन में भारत में कोई विकल्प है। ये कोई नहीं सोचता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ना चाहिए। किरण जी एक प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले 8 सालों से आप मंत्रिमंडल में हैं। प्रधानमंत्री आम आदमी के जो मुद्दे हैं उस पर काफी सख्त रहते हैं, और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी सीधे तौर पर एक संदेश दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री सॉफ्ट ह्यूमन टच के लिए जाने जाते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से? प्रधानमंत्री जी का एक खास, क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी से जब कोई भी मिलते हैं, कोई मंत्री, कोई ऑफिसर या कोई स्पोर्ट्स के लोग, कल्चर बैकग्राउंड से लोग, साहित्य के लोग, जो भी मिलते हैं, आप उनसे पूछिए
प्रधानमंत्री जी के साथ उसका मुलाकात कैसे रहा है। और जब लाभार्थियों से बात करते हैं, हर समय मोदी जी आम लोगों से ही जुड़ते हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, चाहे वो किसी भी टॉक के वजह से उसको मिलना होता है या किसी भी कारण से। उसका जो सॉफ्ट एलिमेंट जो है वही मोदी जी का सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मोदी जी लोगों का सोच को अपने ही सोच के साथ उसको मिलाते हैं। फिर जो हर एक कदम आम लोगों को, सबसे गरीब लोगों को फायदा क्या हो सकता है, इस दृष्टिकोण से वो फैसला लेते हैं। इसीलिए तो इतना जन विश्वास प्राप्त करते हैं मोदी जी। अदरवाइज दुनिया में आप बताइए कौन सा नेता है इतना बड़ा जन विश्वास प्राप्त करते हैं उनके काम से, उनके नाम से, उसके कारनामे से। जो भी मोदी जी करते हैं उसको लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं। जो ओपोजिशन कुछ है, वो तो राजनीति में तो ओपोजिशन तो रहता ही है, लेकिन आज के दिन में ओपोजिशन पार्टी मोदी जी के बारे में अगर कोई गलत बातें करते हैं तो आम लोगों को हजम नहीं होते वो बातें। उल्टा आम आदमी और मजबूत से मोदी जी के साथ और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन विश्वास मोदी जी के पास है। Okay. इसलिए आपका जो सवाल है वो मैं बहुत बड़ा काम से नहीं, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं इसको। मैं मोदी जी का आम आदमी के साथ जुड़ने का जो उसका तरीका है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। मेरा यही कहने का मतलब था कि सॉफ्ट ह्यूमन टच का जो उनका जो तरीका है वो काफी महत्वपूर्ण है किरण जी। उसका बराबर कोई नहीं है। और कोई भी मोदी जी को मिलता है तो जो बोलता है ना, वो जितना सुनता है उसका सुनने का क्षमता मैं और किसी इंसान में नहीं देखा। इतना सुनने का क्षमता है और उतना शक्ति है मोदी जी का, इसलिए तो लोगों का भावना को वो दिल से समझते हैं। ऋषभ, ओके जी, आई नो टाइम इज शॉर्ट, एक दो छोटे और सवाल करूंगा। उन्होंने सॉफ्ट ह्यूमन टच की बात करी। हाउ इज इट लाइक वर्किंग फॉर नरेंद्र मोदी हु एज अ रिपोर्टिंग मैनेजर, टीम लीडर? इसका आपका एक्सपीरियंस क्या, आपने क्या सीखा है? और जो नौजवान लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं, मैनेजमेंट स्टाइल कैसे हाईली कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डील करें at that kind of scale? क्या सीख सकते हैं हम? 8 साल हो गए हैं। एक तो मोदी जी का एक टीम का हिस्सा होने का फायदा ये है कि उनका एनर्जी लेवल के साथ आपको कहीं ना कहीं तालमेल करके चलना होगा। आराम शब्द तो है नहीं। जैसे बोलते ना माइंड इलास्टिसिटी होता है, लोग कहते हैं ना मेरा माइंड में इतना रखने का जगह नहीं है। माइंड में जितना भी चीज है अगर आप एक्सपांड करेंगे और रख सकते हैं, क्योंकि माइंड का कोई लिमिट नहीं है। उसी प्रकार इंसान का एनर्जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुरू में हम भी सोचते थे हम 5 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे थोड़ा रेस्ट करना होगा। ये आम एक कल्चर था। मैं तो कितने सालों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से भी देखता था कि इतना घंटे काम करना है, इतना आराम करना है। जब से मोदी जी के साथ में आए, आराम का जो शब्द है वो तो हमारे डिक्शनरी में आज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि आराम का कोई वाक्य आज हमारे पास कोई जगह नहीं है। निरंतर काम करते रहो, एनर्जी बढ़ते जाते हैं, और काम करेगा और एनर्जी मिलता है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का रूप से काम हो रहा है। इसलिए आप देखिए कोई मंत्री पिछले 8 सालों में एक भी मोदी जी का मंत्री पैसे लेते हुए, घूस खाते हुए जैसे कांग्रेस जमाने में होते थे, आप देखा है? उस जमाने में तो हर दिन कोई ना कोई मंत्री, उसका स्टाफ कहीं ना कहीं पैसे मांगते हुए, कहीं ना कहीं गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कुछ ना कुछ आपको डेली मिलेंगे। आज के दिन में कोई सोच भी नहीं सकते हैं कि मोदी जी का कोई मंत्री 1 रुपया का गलती काम करेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। Okay, Kiran ji, I want to leave you on a lighter note. There is a Football World Cup that's just concluded. Modi ji was in the Northeast right now talking about football, and we are hoping, we've hosted the under-17, under-19, hoping to play in the Football World Cup ourselves. Who was your favorite international player, sir? Well, I have been a great admirer of so many teams and so many players, and I was sports minister of the country also. I have a passion for sports and a special passion for football. I am sad that India is not part of the World Cup, but I'm happy that my favorite team won the World Cup. Okay, so it's messy then. Yeah. एक क्वेश्चन, किरण जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, क्योंकि
जिस तरह से लगातार जिस स्टेट से गुजर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे कई तमाम मसले उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, ये यात्रा किस तरह से देखते हैं किरण रिजिजू? राहुल गांधी जी का सोच में भारत का एकता का समझ ही नहीं है, तो भारत जोड़ने का तो वो कर नहीं सकते हैं। अब उसके यात्रा को भारत जोड़ो नाम दिया है तो उनका मर्जी है, हम लोग तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में जाएंगे तो कहेंगे कि तमिलनाडु अलग है, बाकी देश के लोगों से अलग है। कश्मीर जाएंगे कहेंगे कि कश्मीर के लोग अलग है। उसका काम और उसके बाद जो है भारत को तोड़ने का काम करते रहते हैं और यहाँ डायलॉग मारते हैं जोड़ने का। किसी भी रूप से वो भारत को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। भारत को जोड़ने का एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ मोदी जी ही कर रहे हैं। Okay, fascinating conversation, Kiran ji. Pretty forthright, and it's good to have you on the मंच. आप हमारे साथ जुड़े, हमारे 10 न्यूज चैनल पे लाइव गया है, एंड आई एम होपिंग संदेशा भी गया है और एक अच्छी दिलचस्प बातचीत भी हुई है. किरण रिजिजू, ladies and gentlemen, let's give him a big round of applause for having a very honest conversation with us. Thank you very much, sir.